محکمہ صحت پنجاب کی 28 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز۔ محکمہ صحت کے مطابق پنجاب میں فوری طور پر کم از کم 4 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ 50 برس سے زائد عمر کے افراد کو قرنطینہ کرنے کی ہدایت کی جائے۔ عوام میں آگاہی مہم بھی چلائی جائے۔ پنجاب میں 31 مئی کے بعد کورونا سے متعلق نئی حکمت عملی کے لیے اہم اجلاس، سفارشات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ عوام کورونا سے محفوظ رکھنے کے ساتھ اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے حوالے سے کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کورونا وائرس کے بارے میں آگاہی مہم شروع کرنے پر اتفاق۔ مختلف صنعتوں، کاروبار کے اوقات کار اور ہفتہ وار چھٹیوں سے متعلق تجاویز کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ بڑھنے کے باوجود ایس او پیز نظر انداز۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی زیادہ تر فیکٹریوں میں احتیاطی تدابیر کو بھلا دیا گیا۔ مزدوروں نے ماسک پہنے نہ ہی گلوز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں پشاور بی آر ٹی منصوبہ کے سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس نے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 3 جون کو کیس کی سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ اور تمام بینچز 1 جون سے کھولنے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق عوام کی سہولت اور زیر التوا کیسز نمٹانے کے لیے کورٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے امور ایس او پیز کے تحت چلائے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں کورونا کیس سامنے آنے کے بعد 12 مئی کو بند کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات۔ پنجاب اسمبلی کے آئندہ بجٹ اجلاس کے حوالے سے بات چیت۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کورونا وبا کے باعث طرز زندگی بدل گیا، سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کروانا ہوں گے۔ محکمہ اطلاعات سندھ میں 5 ارب 75 کروڑ ریفرنس کی سماعت۔ سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور دیگر ملزمان کراچی کی احتساب عدالت میں پیش۔ ریفرنس کے گواہ پیش نہ کرنے پر عدالت تفتیشی افسر پر برہم۔ آئندہ سماعت پر ہر صورت گواہ پیش کرنے کا حکم۔ ریفرنس کی سماعت 17 جون تک ملتوی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ میاں والی، فیصل آباد، جھنگ، پاک پتن، توبہ ٹیک سنگھ، حجرہ شاہ مقیم میں بادل برسے۔ لاہور میں بھی رم جھم۔ فرزندان اسلام کے لیے خوشخبری۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل سے عام نمازیوں کے لیے مرحلہ وار کھولنے کی اجازت۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان نے منظوری دے دی۔ نمازی مسجد نبوی میں ظہر، عصر اور مغرب کی نماز ادا کر سکیں گے۔ نمازیوں کو گھر سے وضو کرنے، جائے نماز ساتھ لانے کی ہدایت۔ اور ہم ایک ہیں۔ پاکستان سمیت 7 ممالک کے 40 فنکاروں کا کورونا وبا کے دنوں میں امید کا گانا۔ پاکستان، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، روس سمیت دیگر ممالک کے فنکاروں، موسیقاروں اور گلوکاروں نے لوگوں میں امید پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کی سفارش۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 روز بعد کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے، جبکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ آج کرے گی۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے رانا طارق سے۔ رانا طارق اس حوالے سے بتائے گا کیا فیصلے متوقع ہیں؟ جی دیکھیں، اقتصادی رابطہ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ آج کرے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 روز بعد کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔
ये असम्बली नहीं भिजवाई गई है ईसीसी को। मौजूदा सूरत हाल में हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाए, ये कहा गया है असम्बली में। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल जो है वो कम हो रही हैं। कीमतों का हर 15 दिन बाद तयन ना किया गया तो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा है। ये कहा गया है असम्बली में 15 दिन बाद कीमतों का तयन करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिवालिया होने से भी बचाया जा सकता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 7 से 11 रुपये फी लीटर कम करने की सिफारिश की है। इजलास में 200 अरब रुपए के इस्लामी सकूक बॉन्ड्स का मामला भी ईसीसी के इजलास में रेरे गोर आएगा। इसके अलावा वजारत तवानाई 200 अरब रुपए की तकसीम के हवाले से दोबारा असम्बली जो है वो ईसीसी में पेश करेगी और उसमें अदायगी का तरीकाकार के हवाले से भी मामला तय किए जाएंगे। ठीक है, इस हवाले से मामला तय किए जा सकते हैं। राना तारिक, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर बीआरटी मंसूबा केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने बीआरटी मंसूबे से मुताल्लिक केपीके हुकूमत की अपील पर बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। इमरान वसीम, इस केस के बारे में आगाह कर दें। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, जो 3 जून को बीआरटी मंसूबे से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस काजी अमीन भी शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एफआईए को बीआरटी मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया गया था। इस अदालती फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुक्म इम्तनाई भी दे चुकी है और इस मुकदमे की आखिरी समाअत जो है वो माह रमजान के अवाइल में हुई थी। अब 3 जून को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। इमरान वसीम, शुक्रिया आपका। आपको खबर दें कि पंजाब में 31 मई के बाद कोरोना से मुताल्लिक नई हिकमत अमली के लिए सिफारिशात की तैयारी के लिए अहम इजलास सूबाई वज़रा राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत, लग्जरी के बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया गया है। इसी बारे में बात करेंगे। लाहौर से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा मजीद इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत अहम इजलास था। 31 मई के बाद कोरोना वायरस से मुतल्लिक नई हिकमत अमली के लिए सिफारिशात की तैयारी के लिए ये अहम इजलास हुआ, जिसके अंदर सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर हुकाम ने जो है वो शिरकत की है। अवाम को मोहलक वबा से महफूज रखने के लिए माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लग्जरी की बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया गया है। शुरा ने मुख्तलिफ सनतों कारोबार के लिए औकातकार और हफ्तावार छुट्टियों से मुतल्लक तजावीज़ का भी तफसीली जायजा लिया है। इजलास में सिफारिशात को इत्तफाक़ राय से हतमी शक्ल जो है वो दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों को लाहौर के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर की दस्तियाबी को मालूमात फराहम करने के लिए म्यू अस्पताल में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला भी आज किया गया है। एनडीएमए से फौरी तौर पर 200 वेंटिलेटर फराहम करने की दरखास्त जो है वो भी की जाएगी, जबकि इससे पहले 1500 वेंटिलेटर की फराहमी से मुतल्लक दरखास्त भी भिजवाई जा चुकी है। इसके साथ साथ ये अहम फैसला किया गया है कि 31 मई के बाद कोरोना वायरस से मुतल्लक नई हिकमत अमली के लिए जो सिफारिशात तैयार की गई हैं उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाएगा। उन सिफारिशात को फाइनल किया जा रहा है, जिसके बाद अहम इजलास होगा और उसके बाद इस पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। जी, इजलास बारे आगाह किया शाहिद चौधरी, शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, चिन्योट का जनरल बस स्टैंड मसाइल के भंवर से न निकल सका। लारी अड्डे पर मुसाफिर खाना बना और न ही पब्लिक वॉशरूम्स फाल हो सके। और तो और सख्त गर्मी में मुसाफिरों को पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कलीमुल्लाह बलोच से। कलीम, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चिन्योट के जनरल बस स्टैंड में मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से गैर आबाद है और इसे आबाद करने के लिए, बहाल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने इकदाम तो उठाए, लेकिन जो इकदाम हैं वो भी सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर सहूलियात की बात की जाए तो इंतहाई फुकदान है सहूलियात का। यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ना तो यहाँ पर कोई शेड्स बनाए गए, बल्कि यहाँ पर मुसाफिर खाना जो अरसा दराज से यहाँ पर कायम था उसे भी गिरा कर नए बनाने के जो हैं वो अहकाम तो जारी हुए, लेकिन
हतमी शक्ल जो है वो ना दी जा सके। वाशरूम्स हैं उन्हें ताले लगाए गए हैं, सीवरेज का यहाँ पर कोई निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर जब भी बारिश आती है तो ये जो जनरल बस स्टैंड है ये जोहड़ों की जो शक्ल है वो इख्तियार कर जाता है। ताहम यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं, जो मुकामी यहाँ पे शहरी हैं, उनकी जानिब से ज़िले इंतज़ामिया से बल्कि पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है कि एक जो निजी जनरल बस स्टैंड की वजह से जनरल बस स्टैंड जो सरकारी सतह पे कायम था इसे गैर आबाद कर दिया गया। लिहाजा इनका मुतालबा है कि फिलफौर इसको जल्द से जल्द आबाद करने के या बहाल करने के इक़दाम हंगामी बुनियादों पर उठाए जाएँ ताकि जो शहरी हैं उन्हें बेहतर सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर आ सकें। कलीमुल्लाह बलोच हमें तफसीलात दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।